ایک طرف انسداد تجاوزات آپریشن کا ملبہ، دوسری طرف پارک خستہ حال۔ کارپوریشن فیصل آباد کے لیے صورتحال پریشان کن، جگہ جگہ بڑا ملبہ اٹھانا امتحان۔ غلام محمد آباد میں 47 چھوٹے پارکس بھی توجہ کے منتظر، جبکہ ریلوے پولیس کا راجبا روڈ پر آپریشن۔ پختہ تعمیرات مسمار، واگزار اراضی پارکنگ کمپنی کو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کے ٹھیکے پر دی جائے گی۔ ماڈل بازار جھنگ روڈ پر دکانوں کی نیلامی، تجاوزات ختم نہ ہوں۔ فیصل آباد میں گٹروں کے ڈھکن پھر سے چوری۔ جیل روڈ، جڑاوالا روڈ اور ملت روڈ چوروں کے نشانے پر۔ جھنگ روڈ سے ملحقہ علاقوں میں بھی متعدد جگہوں سے ڈھکن چوری۔ کئی مین ہولز ڈھکن ٹوٹ گئے، عوام کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ علاقے کی ترقیاتی کاموں کے لیے 75 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کرائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر پی پی 112 چودھری عدنان انور رحمانی پرعزم کہتے ہیں ٹوٹی سڑکوں اور سیوریج مسائل حل ہوں گے۔ آن لائن مین سرور میں خرابی محکمہ ریلوے کے لیے درد سر بن گئی۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا نقصان 20 لاکھ تک پہنچ گیا۔ ٹرینوں کی بکنگ بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات۔ خسارے میں ڈوبے ریلوے کا خمیازہ ملازمین بھی بھگتنے لگے۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ کالونی میں بھی بجلی کی بچت پالیسی، لوڈ شیڈنگ جاری۔ پولیس کا دباؤ، سیاسی اثر و رسوخ یا وجہ کچھ اور؟ پیر محل میں پیٹرولنگ پولیس کے ہاتھوں شہری کی ہلاکت کا معاملہ، مراسا نے اہلکاروں کو معاف کر کے صلح کر لی، اظہر کی موت کو حادثاتی قرار دے دیا۔ کورونا نے مزید 5 زندگیاں چھین لی، 81 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 3 مریض جاں بحق، ٹوبہ میں 2 اموات، چنیوٹ میں 23 اور جھنگ میں 4 مریضوں کا اضافہ۔ پیر پنجا لالیہ کے اسکول میں طلبہ کا کورونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا۔ فیصل آباد میں غریب مریضوں اور تیمارداروں کی فلاح کا منصوبہ کورونا کے باعث تاخیر کا شکار۔ الائڈ ہسپتال میں بننے والی پناہ گاہ 1 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکی۔ مخیر حضرات کے تعاون سے 6 ماہ میں تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا۔ این اے 108 فیصل آباد میں 3 نئی گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریاں قائم۔ اتحاد پارک، احمد نگر اور سر سید ٹاؤن کی ڈسپنسری شامل۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا نے اعلیٰ حکام سے عملے کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کا تجارتی آرڈرز برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلہ۔ بڑے ٹیکسٹائل ایکسپو منسوخ ہونے کے بعد باہمی مذاکرات بڑھانے پر اتفاق۔ صدر چیمبر احتشام جاوید کے مختلف ممالک سے رابطے، امریکی سفارت سے بھی بات کی گئی۔ اٹلی، جرمنی سمیت دیگر ممالک کو بھی خط لکھے گئے۔ روز بروز بگڑتی کاروباری صورتحال سے ہول سیل تاجر بھی پریشان۔ حکام سنجیدگی دکھائیں، کاروبار کی ترقی کے لیے بہتر پالیسیاں بنائی جائیں۔ صدر ہول سیل کلوتھ سیکٹر فیصل آباد شیخ فیصل نے مطالبہ کر دیا۔ گھریلو جھگڑوں سے تنگ مزید 3 خواتین اولڈ ہوم میں آ گئیں۔ اسلام فاؤنڈیشن کے ممبران کا کہنا ہے کہ جو بھی خواتین یہاں آتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے گھر والوں سے رابطہ کر کے انہیں واپس بھیجا جائے۔ اولڈ ہوم میں صرف حقدار خواتین کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ گھریلو ملازمت تشدد کیس میں ملزم عثمان منج فیصل آباد کی عدالت میں پیش۔ عدالت نے ملزم کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ گزشتہ سماعت پر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا۔ سرکاری اسکول میں پرائیویٹ کبڈی ٹورنامنٹ کا اختتام ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی اور سی ای او ایجوکیشن عدالت میں پیش۔ ڈی سی نے آئندہ ایسا نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ معافی نامے پر درخواست نپٹا دی گئی۔ بوانا میں عدالت کے باہر وکلاء کے ایس آئی پر تشدد کا معاملہ۔ صدر تحصیل بار سمیت 13 نامزد اور 15 نامعلوم وکلاء کے خلاف مقدمہ درج۔ وکلاء برادری کی ہڑتال، ڈویژن بھر کے وکلاء کا اظہار یکجہتی۔ وکیل کے گھر چھاپے کا الزام، بعد نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ فیصل آباد شہر کی 3 بڑے سرکاری اداروں کے بلوں کی عدم ادائیگیوں پر کنیکشن کاٹنے کا سلسلہ شروع۔ غلام محمد آباد ڈویژن نے پی ایچ اے، ٹی ایم اے اور فوڈ اتھارٹی دفاتر کے کنیکشن کاٹ دیے۔
PHA 3 लाख, TMA ने 44 लाख के बिल अदा नहीं किए। पंजाब फूड अथॉरिटी के जिम्मे भी 1 लाख से जायद के बिल वाजिबुल अदा। फैसलाबाद स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में सनतकार गैर महफूज हो गए। हर साल सर्दियों में तारे और ट्रांसफार्मर चोरी होना मामूल बन गया। पुलिस ने एक्शन न लिया, फेस्को ने उल्टा हमसे इंस्पेक्शन शुरू कर दी। सनतकार मोहम्मद तैयब की आला हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। लाइव स्टॉक एंड डेयरी, पोल्ट्री, ब्रायलर, वेटनरी, फार्मास्यूटिकल स्टैंडिंग कमेटीज की वाने सनत और तिजारत में मुश्तरका मीटिंग। मुर्गी के गोश्त, अंडे की कीमतें बढ़ाने और फार्मर समेत आवाम को रिलीफ न मिलने पर मसाइल जेर बहस आए। डॉक्टर सज्जाद अरशद, सैयद कामरान गिलानी, बिलाल अमीन, महमूद बलोच समेत दीगर की शिरकत। एक्सपोर्टर्स के लिए खतरे की घंटी। FBR की 5 बड़े सनती शोबों के लिए 0 रेटेड सेल्स टैक्स तजवीज की मुखालिफत। लोकल मैन्युफैक्चर के फायदा उठाने का जवाब पेश कर दिया। सनतकारों की हुकूमत से एक्सपोर्टर्स के कारोबारी रास्ते हमवार करने की अपील। जीरो रेटेड कैटेगरी में आने वाले सनतों की रजिस्ट्रेशन के लिए FBR में खुसूसी सेल कायम। रजिस्टर्ड पैदावारी यूनिट्स को बिजली, गैस और RLNG के बिलों में सब्सिडी फराहम की जाएगी। सेल नए बनने वाले कारखानों की तहकीकात करेगा। ज़रूरी फॉर्म्स की सैंपलिंग और डिजिटलाइजेशन का फैसला। जंग के फॉर्म्स में मौजूद मट्टी के सैंपल और पैदावार को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। सॉइल एंड वाटर लेबोरेटरी में प्रोजेक्ट के लिए डिजिटलाइजर तैनात कर दिए गए। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन लेट करने और किसानों को गन्ने की अदायगियां न करने पर सजा दी जा सकती है। हुकूमत ने शुगर केन तरामीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जिला सदर किसान मोर्चे न्योट चौधरी सोहराब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से शुगर केन तरामीमी ऑर्डिनेंस को तब्दील करने का मुतालबा। जनरल अस्पताल समनाबाद में शाम को भी मरीज बच्चों का इलाज का होगा। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर OPD शुरू की गई। तिब्बी मुआयने के साथ अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में टाइफाइड वैक्सीन से आगाही के लिए सेमिनार। सेक्रेटरी हेल्थ महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान, कमिश्नर साकिब मन्नान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, क्रिकेटर सईद अजमल समेत दीगर की शिरकत। शहरियों को वैक्सीन की अहमियत से आगाही, बच्चों को टीके लगवाने की अपील। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग खुले आसमान तले दफ्तर लगाने वाले पंजाब के पहले पुलिस ऑफिसर बन गए। DPO सरफराज शेख ने अपना दफ्तर बाहर शिफ्ट कर लिया। हर खास आम बगैर किसी पर्चे और इंतजार के मिल सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की अहदेदारान की जानिब से खवातीन के मसाइल को उजागर करने की कोशिशें। सीनियर नायब सदर फिरदौस मुबश्शिर कहती हैं, फैसलाबाद में खवातीन को मजबूत बनाने जाएगा। CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी का CTO दफ्तर और लायलपुर कॉम्प्लेक्स का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 विंडो ऑपरेशन की इमारत का जायजा लिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर की एक छत तले तमाम सहूलियात देने की काविशों को सराहा। जंग के तब्दील होने वाले डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू का डिस्ट्रिक्ट बाह का दौरा। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोहिया और असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल भी हमरा। सेशन जज अकरम शेख से मुलाकात की। सदर बार जियाउल हुसैन कासमी ने गुलदस्ता पेश किया, खिदमत को सराहा। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने बिला मुकाबला अहदेदारान का ऐलान कर दिया। आइंदा साल के लिए मोहम्मद हसन अस्करी बिला मुकाबला सदर मुंतखब। नजीर अहमद विर्क एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी FTPA मुंतखब हो गए। जंग में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात। ओहदा सदारत पर सिटी 41 के रिपोर्टर मुबश्शिर हसन नकवी बिला मुकाबला कामयाब। दीगर ओहदों पर कामयाब उम्मीदवारों को भी मेंबरान ने फूलों के हार पहनाए।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नौ मुंतखब काबीना की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात। फैसलाबाद की अदालतों में ई सहूलत समेत दीगर मसाइल जेर बहस लाए गए। सदर बार अख्तर विर्क, सेक्रेटरी खुरम एजाज काहलू और ज्वाइंट सेक्रेटरी राना जैन मुजम्मिल, नायब सदर रेहाना काशिफ अंसारी और दीगर मेंबरान शरीक। चीफ जस्टिस की मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी। महकमा तालीम फैसलाबाद को 50,000 तलबा स्कूल्स में वापस लाने का टास्क मिल गया। ड्रॉप आउट बच्चों की वापसी के लिए 1 फरवरी से दाखिला मुहिम शुरू करने का फैसला। महकमा तालीम पंजाब का स्कूल सरबराहान को बैनर। हर साल असाइनमेंट के सवालात पाबंदी के बायस मकामी कैंपसेस में एमफिल और पीएचडी नहीं करा सकते। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउल कयूम कहते हैं, असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट का खात्मा करने के लिए कोशिश है। जंग में सीईओ एजुकेशन नसीम जाहिद का लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इम्तिहानी सेंटर का दौरा। सीईओ एजुकेशन ने इम्तिहानी सेंटर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। कहते हैं, इम्तिहानात को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। जंग में साबिक सेक्रेटरी बार लियाकत बलोच की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू के एजाज में दोहराना। TPO सरफराज खान विर्क शरीक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया, असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल, साबिक MPA शेख याकूब, AC 18 हजारी असद अली, साबिक MPA मसरूर नवाज, शेख मुआज अहमद, हाजी दिलदार, हाजी हाशिम अली समेत दीगर शरीक। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस फाउंडर्स का यकसा कौमी निसाब सेशन। MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड फारूक मंजूर की खुसूसी शिरकत। कहा, कोई पब्लिशर बगैर मंजूरी की किताबें नहीं छाप सकता। नए सेशन के लिए प्राइमरी तक की किताबें हुकूमत फराहम करेगी। बुआना में इंतजामिया, ताजरान और मुखैर हजरात के ताउन से लंगर खाना कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान असमत पुन्नू और AC इकरा मुस्तफा ने इफ्तिताह किया। इमरान असमत कहते हैं, बेघर और मुसाफिरों को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा। यूनाइटेड मोटर्स की 1000 सीसी गाड़ी अल्फा की फैसलाबाद में लॉन्चिंग का चौथा रोज। सिविल लाइंस में गाड़ी का इफ्तिताह सदर चैम्बर एहतशाम जावेद ने किया। मुनासिब कीमत के बायस कार तवज्जो का मरकज। टेस्ट ड्राइवर के लिए शहरियों का रश। फैसलाबाद में सरकारी सतह पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कमेटी कायम। मुनीर नियाजी को जिलाई बैनुल मज़ाहिब हम आहंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम। दोबारा से दरख्वास्तें वसूल शुरू कर दी। तलबात के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट और मुकम्मल दस्तावेजात जमा कराना लाजिम करार। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में अजमत और शान सिद्दीकी अकबर अल्तला अनहो सेमिनार। डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने अमन व अमान और भाईचारे के फरोग का दर्ज दिया। 29 जनवरी से 8 फरवरी तक अशरा यकजहती कश्मीर बनाने का ऐलान। सेक्रेटरी हेल्थ महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद उस्मान की फैसलाबाद आमद। महकमा सेहत की जानिब से टाइफाइड वैक्सीन से मुतल्लिक आगाही सेमिनार में शिरकत की। कहते हैं, पहली बार 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। इसके बाद ये रूटीन वैक्सीन में शामिल हो जाएगी। तालीमी इदारों के साथ साथ फैसलाबाद नात अकेडमी में भी क्लासेस का आगाज। नात अकेडमी इंतजामिया का कहना है कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। हफ्ते के पहले दिन 3 लड़कियों और आखिरी 3 लड़कों की क्लासेस होंगी। टोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट हाई लेवल डिजाइन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत इजलास में तहसील टोबा के 25 केसेस का जायजा लिया गया। 23 इमारतों के नक्शों की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया गया। 3 के नक्शों की मंजूरी दे दी गई। टोबा पुलिस रजाकारों के एजाज में तकरीब। TPO राना उमर फारूक की खुसूसी शिरकत। 105 रजाकारों में बतौर एजाजिया 10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए।
فیصل آباد اسٹوری آرٹ گیلری میں معروف فوٹوگرافر محمد اظہر کی بنائی گئی تصاویر کی نمائش۔ گلگت بلتستان سمیت پاکستان بھر کی خوبصورت سینری کی تصاویر دیکھنے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد نمائش میں موجود۔ شہریوں نے خوب حوصلہ افزائی کی۔ جھنگ میں ٹیپٹا ڈویژنل کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے نوجوان کرکٹر کے ٹرائلز میں 70 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ جھنگ سے 20 کرکٹر کو فائنل ٹرائلز کے لیے منتخب کیا جائے گا۔